کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک لمحے میں آپ کی دنیا کیسے بکھر سکتی ہے؟ 7 سال کی محنت، خون پسینے کی کمائی اور پھر اچانک یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ بغیر کاغذات کے یوکے میں زندگی گزارنے والوں کا مستقبل نہ تاریخ دکھائی دیتا ہے۔ جب ایک ہی جھٹکے میں ان کی روزی روٹی چھین لی جائے تو ذہن میں سب سے پہلے یہی سوال آتا ہے کہ اگلے مہینے کا خرچہ کیسے چلایا جائے گا، اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں ہم کیسے پورے کریں گے، بجلی کا بل ہے وہ کیسے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں گھومنے لگ جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ 7 سال سے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خوف میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ہر دن ایک چیلنج ہوتا ہے، پھر اچانک ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور آپ کی دنیا الٹ کے رہ جاتی ہے۔ نوکری ختم آلریڈی ہوئی ہوتی ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، سر پہ ڈپوشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایک طرف سمندر کے رستے آنے والوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا یوکے نے کشتی کے ذریعے انگلش چینل سے آنے والوں کے خلاف ڈپورٹیشن آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ انگلش چینل کے رستے کشتیوں پر آنے والوں کے ساتھ یوکے حکومت کیا کر رہی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے، اور جو لوگ قانونی ویزے رکھتے ہیں ان کے لیے حکومت نے کیا آسانیاں کر دی ہیں۔ جینون ویزا ہولڈر اب آسانی سے اسائلم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ سب لوگ جو قانونی طریقے سے یوکے میں داخل ہوئے ان کے لیے ایک سیدھا اور واضح طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو ذرا سوچیں، ایک طرف کچھ لوگوں کے لیے ڈیپورٹیشن کا رستہ کھل رہا ہے اور دوسری طرف کچھ کے لیے آسانیاں اور امیدوں کا دروازہ اوپن ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یوکے امیگریشن قوانین ہمارے فیوچر کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف قانون کی بیس پہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی امید اور مایوسی کی ہے جو ہر روز اپنے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا گیا ہے۔ یوکے نے آخرکار فرانس کے ساتھ 1 in 1 out جو معاہدہ ہے وہ نافذ کر دیا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو سب کچھ ہلا کے رکھ دے گا۔ ہم نے ہمیشہ سسٹم پر بھروسہ کیا ہے، لیکن حقیقت اب سامنے آنے والی ہے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے، وہ تمام لوگ جو انتہائی خطرناک کشتیوں میں اپنی جان داؤ پہ لگا کے انگلش چینل کو کراس کر کے یہاں یوکے آ رہے ہیں۔ ان بدقسمت لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کہانی کی حقیقت آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ انہیں گولی مارنے یا پانی میں پھینکنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن حکومت نے اس بڑھتے ہوئے بحران کو روکنے کے لیے ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے۔ لیکن ان سب کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیا ان بیچارے مسکین لوگوں کے پاس اس دردناک قدم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا؟ یوکے کے پاس صرف ایک ہی حل بچا تھا، ایک ایسا قانونی طریقہ اختیار کرنا جو انسانی حقوق کے قوانین کو بھی نہ توڑے اور ان لوگوں کو آسانی سے واپس بھیج سکے۔ لیکن کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ اس معاہدے کی حقیقت اتنی پیچیدہ ہے اور چونکا دینے والی ہے، یہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ ان تمام معلومات نے یوکے حکومت کو فرانس سے ایک معاہدہ کرنے پہ مجبور کیا ہے، لیکن اس معاہدے میں ایک ایسی قانونی پیچیدگی تھی جو آپ کو رلا کے رکھ دے گی۔ جب حکومت کسی بھی مرد یا عورت کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور لگتا ہے اب سب کچھ فائنل ہو چکا ہے، عین آخری لمحے پر ایک وکیل کوئی ایسا خفیہ چال چلتا ہے کہ عدالتیں بھی حیران ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس ایک چال کی وجہ سے حکومت کا کئی ہزاروں پاؤنڈ کا خرچہ ہوا اور سارا عمل زیرو ہو جاتا۔ ادارے کے درمیان یہ کشمکش ایک بھونچال بن کے رہ گئی ہے۔ حکومتی فیصلوں میں عدالتوں کی مداخلت نے حالات کو اس نیچ پر پہنچا دیا ہے جہاں سیاسی آگ نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ جب یہ ہنگامہ عروج پر تھا تو اچانک ایک ایسی خبر آئی جس نے سب کو لرزا کے رکھ دیا۔ شبانہ محمود کو سیکرٹری داخلہ مقرر کر دیا اور ان کے پہلے ہی بیان نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ عدالتوں کے ساتھ مل کر پناہ گزینوں کے تمام جھوٹے اور جعلی دعوے سے جو بھی جڑے ہیں اسے اکھاڑ دیا جائے گا۔ تو یہ بیان ایک بجلی کی طرح لوگوں کے اوپر گرا اور اس نے لاکھوں لوگوں کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس سارے تنازع میں ایک دردناک موڑ اس وقت آیا جب حکومت کی تمام تر کوششیں شبانہ محمود کی سخت کارروائیوں کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔ آخری لمحات میں عدالت کی طرف سے یہ کینسل کر دیا گیا۔ اپیل کے باوجود لوگوں نے اپیل کی، اس کے باوجود جو بھی درخواست گزاروں کو فرانس واپس بھیج دیا گیا۔ یہ ایک بہت ہولناک خطرناک فیصلہ تھا جس نے انسانیت کی امیدوں کو کچل کے رکھ دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کچھ معلومات میں انصاف بھی ہے، انصاف جو ہے بے معنی ہو جاتا ہے۔
इन नागेजों की कहानी में ना एक नया चौंका देने वाला पहलू सामने आया है। ये फैसला सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इंग्लिश चैनल्स के खतरनाक रास्ते से ना तमाम कवानीन को तोड़ते हुए गैर कानूनी तौर पर यूके में दाखिल हुए। उनकी वाहिद उम्मीद बस यही थी कि इन्हें अपने मुल्क में ना खतरा है, लोग उनको मारने पे तुले हुए हैं, मगर अब इनके दावों को खतरनाक हद तक झूठा करार दे दिया गया है। यानी एंड टाइम पे वो अपने झूठे बहाने बना के अपने आप को बचाने के लिए ये अदालत को कन्विंस करने की कोशिश में थे। तो जी ये अदालतों ने अब इनको समझ आ चुकी थी कि ये सब झूठ है। फैसलों के बाद अब एक और खौफनाक हकीकत सामने आई है। इस मुआहदे पर ना बाज़ाब्ता तौर पर अमल शुरू हो चुका है। अब इन तमाम लोगों को निकालने का फैसला कर लिया गया है जो कश्तियों के जरिए यूके में दाखिल हुए हैं। ये एक ऐसा दर्दनाक कदम है जो हजारों जिंदगियों को बेरहम तारीखी की तरफ धकेल रहा है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि एक इंसानियत के फैसले हैं जो दिलों को रुला रहे हैं। एक ऐसा वक्त में ना जब हुकूमत इस मुआहदे पर खुशी मना रही थी, तब ही शबाना महमूद की तरफ से ना एक ऐसी हैरानकुन खौफनाक खबर सामने आई जिसने सबको चौंका के रख दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक तबाहकुन ऐलान था जिसने बहुत से लोगों की नींदें उड़ा के रख दी हैं, उनके दिलों में मायूसी की नई लहर पैदा कर दी है। जब हुकूमत एक तरफ कश्तियों से आने वालों को डिपोर्ट करने का सख्त फैसला ले रही थी, तब ही एक हैरानकुन हकीकत सामने आई जिसने सबको चौंका के रख दिया। शबाना महमूद ने ऐलान किया कि हुकूमत फ्रांस से कानूनी तारकीन वतन को भी कबूल करेगी, लेकिन सबसे अहम और जज्बाती बात यह थी कि उन्होंने वादा किया कि वो तमाम मुखलस लोग जो कानूनी रास्ते से आएंगे और ये साबित करेंगे कि इनकी जान को वाकई अपने मुल्क में खतरा है, इन्हें यूके में पनाह दी जाएगी। अगर झूठ की बेस पे वो कहते हैं कि जी हमारी जान को खतरा है, तो फिर जी वो अपनी खैर मना ले। ये बयान उम्मीद और खौफ का एक अजीब इम्तियाज था जिसने सबको शॉक करके रख दिया। ये हैरत अंगेज बयान एक ऐसा वक्त में सामने आया जब यूके की हर शहर, हर बाजार, हर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, जी महाजरीन को मुल्क से निकालो। ये एक खौफनाक सूरत हाल थी जहां हर तरफ नफरत और गुस्से की आग भड़क रही थी। लेकिन इस दर्दनाक माहौल में भी ना ये बयान एक बिजली की तरह गिरा और सबको शॉक कर गया। इन सख्त हालात में हुकूमत का ये हैरानकुन रवैया अब सामने आया है। ये पहली बार हुआ है कि कंजर्वेटिव पार्टी के रवांडा मुआहदे पर ना खुद हुकूमत के अंदर इतना शदीद इख्तलाफ पैदा हुआ है कि ये मुआहदे शुरू होने से पहले ही ना पाश पाश होके रह गए हैं। ये सूरत हाल एक खौफनाक हकीकत की कासी कर रहा है। अंदरूनी कशमकश और सियासी तनाव ने ना किस तरह एक अहम मंसूबे को तबाह करके रख दिया है। इस नाकामी की कीमत खौफनाक थी। यूके के टैक्स की तकरीबन 270 मिलियन पाउंड का शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा है। हुकूमत ने ये रकम रवांडा को पहले ही दे दी हुई थी, लेकिन मुआहदे पर अलमदार को रोक दिया गया। मुआहदे के जो भी था कानून उसको रोका गया है। न सिर्फ एक माली तबाही थी बल्कि एक रुला देने वाली हकीकत थी कि हमारे खून पसीने की कमाई कैसे एक गैर यकीनी और पाश पाश होते हुए मंसूबे की नजर हो गई। इसी हंगामा आराई के दरमियान ना एक और चौंका देने वाला मोड़ आया। इंतखाबात के नतीजे में नई हुकूमत आई जी। लेबर पार्टी ने अपनी हुकूमत संभाली, सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने आते ही ना इस मुआहदे को जड़ से उखाड़ फेंका और इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ये फैसला ना सिर्फ सियासी था बल्कि एक दर्दनाक हकीकत का भी सबूत था। हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से इस हंगामी सूरत हाल से निकलने की पूरी कोशिश की, मगर वक्त तेजी से गुजरता गया, मसाइल दिन ब दिन बढ़ते गए। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रही थी, लेकिन इससे बेयकीनी और मायूसी के आलम में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। जब हुकूमत कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ यूके अवाम का सब्र जवाब दे चुका था, क्योंकि हुकूमत अवाम जो थी वो सब्र नहीं कर रही थी। तो उनका बस नहीं चलता था कि वो खुद इन तमाम लोगों के गिरबान पकड़े ना, इन्हें घरों से घसीट कर निकाले और किसी भी दूसरे मुल्क में ना डिपोर्ट कर दे। ये सूरत इस बात की गवाही दे रही थी कि जब इंसानियत पर गुस्सा हावी होता है ना, तो लोग कैसे बेरहम हो जाते हैं। कानून के दायरे में रहकर यूके अवाम हुकूमत पर शदीद दबाव डाल रही थी। इस दबाव से निकलने के लिए हुकूमत भी तेजी से नए कवानीन बना रही थी, जो ये जाहिर करता है कि हालात किस कदर कशीदा और सियासी तौर पर गैर मुस्तकिम हो चुके हैं।
इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे कर रही है ताकि लोगों को तसल्ली दी जा सके। हुकूमत ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, अब इत्मीनान रखें, बरतानिया हुकूमत आपके तमाम डिमांड्स को पूरा करेगी। तमाम सियासी खिंचाव तानी जो भी खींचातानी हो रही है उसके बावजूद इसी दौरान होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक दर्दनाक बयान सामने आया जिससे बहुत से लोगों की उम्मीदों को ना जला के रख दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी जिससे ने लोगों को सदमे में मुब्तला कर दिया। लेकिन इस मायूसी के और खौफ के दरमियान एक उम्मीद की किरण भी जागी। वो लोग जो समझते थे कि इनका केस मजबूत है और इन्हें यूके में पनाह मिल सकती है, इनके लिए अभी एक और रास्ता खुला है, कानूनी रास्ता। हुकूमत ने अब ये चौंका देने वाली बात वाज़ेह कर दी है कि अगर आप कानूनी रास्ते से यानी प्रॉपर चैनल और इमिग्रेशन प्रोग्राम के जरिए वीज़ा हासिल करके यहाँ यूके में दाखिल होते हैं तो आप पनाह के हकदार होंगे। यानी लीगल तरीके से अगर आप आते हो ना तो आपके लिए यूके के रास्ते ओपन कर दिए जाएंगे। ये एक बिजली की तरह गिरने वाला फैसला था क्योंकि हुकूमत ने यह साफ साफ कह दिया था जो लोग गैर कानूनी तौर पर दाखिल होंगे इन्हें किसी सूरत पर यहाँ यूके में पनाह नहीं दी जाएगी। इसके साथ एक और दिल दिला देने वाला पहलू भी सामने आया। जो लोग गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए उनके तमाम केसेस को फौरी तौर पर ख़त्म करके इन्हें फ्रांस वापस भेज दिया जाएगा। ये एक खौफनाक फैसला था जो ये जाहिर करता है कि यूके अब गैर कानूनी लोगों को खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन इन तमाम मायूस कुन खबरों के दरमियान एक उम्मीद की किरण भी उठी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है जो लोग कानूनी तौर पर यहाँ यूके में दाखिल होंगे इन्हें कानून के मुताबिक पनाह दी जाएगी। वो तमाम लोग जिनके पास मजबूत दलाइल और सबूत होंगे, उनका वकील उनके केस को साबित करेगा तो वो कामयाब हो सकते हैं, तो इन्हें बहुत आसानी से यहाँ यूके में ना पनाह मिल सकती है। ऐसे में जब हुकूमत पर शदीद दबाव है और लोग खुद भी हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सूरत एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अवाम के दिलों में इतना गुस्सा है कि वो खुद इस मसले को ना अपने हाथों से हल करना चाहते हैं। ये तफ्शीशनाक है क्योंकि ये इंतशार और नफरत को मजीद बढ़ावा दे रही है। इन तमाम दबाव और दुनिया भर के ववेले के बावजूद हुकूमत ने एक और हैरान कुन और बहादुराना फैसला किया है। हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं। ये एक ऐसा अहम और चौंका देने वाला कदम है जो दिखाता है चाहे हालात कितने भी नाउम्मीद क्यों ना हो जाए, हुकूमत अपने वादों पर कायम रहेगी। इसी में एक बात बिल्कुल साफ है, यूके हुकूमत चाहते हुए भी ना इन लोगों को नहीं निकाल सकती जो कानूनी तौर पर अपने मुल्क से जुल्म सितम से भाग कर यहाँ यूके में आए। हुकूमत को इन तमाम बैनुल अक़वामी माहदे और चार्टर्स का ख्याल रखते हुए जिनमें ये दिखाना ज़रूरी है कि यूके एक इंसानों की लुक आफ्टर करने वाला मुल्क है, वो ऐसे तमाम लोगों को आसानी से पनाह दे सकता है जिनको रंग, नस्ल, मजहब, पेशा या सियासी वाबस्तगी की वजह से किसी किस्म का कोई खतरा है। यूके एक ऐसी जगह है जहां वो बावकार और बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इन तमाम परेशान कुन खबरों के बावजूद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो लोग ये सोचकर मायूस थे कि यूके में पनाह का खात्मा होने वाला है, वो गलत है। कानूनी तौर पर आने वाला शख्स के पास अब भी एक मौका है। इनके पास इतने मजबूत सबूत होने चाहिए वो यूके अदालतों को ये यकीन दिला सके कि इनकी जान माल को वाकई खतरा है। तो इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि यूके अदारे इन तमाम लोगों से सख्ती से निपटेंगे जो गैर कानूनी तौर पर यूके की खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन तरीके से इनका मुकाबला कर रही है और मुकामी लोगों को भी ठंडा रखने के लिए इनके कुछ मुतालबात माने जा रहे हैं। आखिर में यही है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।